Good morning, everyone. Welcome to another session in ethics. In the last session, we had some issue, so the session went for only 1 hour because now we are going with these online classes. So first of all, before going into the session, once again there is eruption of cases. So all of a sudden we are having, like, in Delhi itself 5,500 plus cases. So wherever you are, please take all the precautions, get vaccinated, stay in your homes. Don't become the spreaders. Okay, that's first caution. Second thing is, coming to our course. See, we already started this sixth topic in ethics, which is ethics in public services. Okay, and how to resolve the conflicts or dilemmas, whatever that come, using laws, rules, regulations, conscience and other things. Okay, that is going on. So in the last session, let me sum it up. In the last session, what we have done, we have covered what is the meaning of public administration, what is the ambit of it, what are its characteristics. Then in the public administration, what are our main goals that we have seen. Then we looked at what is the status of it and what is the need of ethics in public administration. These things we have understood in the previous session. So in this particular session, what we are going to understand is, I'll be strictly going with your syllabus. See, in the syllabus of your ethics, in this sixth topic, ethics and public services, see what are there. I'm just going to read out status and problems. So today we are going to, first off of the section, let me write it here, our learning objectivity. Learning objectivity of this session is, first we wanted to understand what are the problems with public administration, and as a result of it, like, what are the ethical concerns and dilemmas. Okay, I'm strictly sticking myself to the subject of, or the syllabus of UPSC. Then we will be looking at, see here, ethical concerns and dilemmas. In your syllabus it is given both in public and private institutions. Is it visible if I am writing here? Yes, it's okay. Public and private institutions. That is what we are interested in. Then after that, once we know these dilemmas or concerns and conflicts, how to resolve them, for that, how laws, rules and regulations going to help us in resolving those ethical concerns. Along with that, from the ethics side, there is a concept called conscience. Conscience of individual, how they are going to guide us to resolve an ethical dilemma. Okay, that is third is lecture. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, we have understood, like I summed up, we have understood till the status of ethics in public services. उसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस है, जैसे हमने देखा था सिविल सर्विसेज का कोड ऑफ कंडक्ट 1964, then amended in 68. Then you have code of ethics. Then some rules have been drafted. Along with that, there was a committee, Administrative Reforms Committee, second ARC and second Administrative Reforms Committee. It has also recommended some of the suggestions.
सिमिलरली अलॉन्ग विद दैट मेनी अदर एक्सपर्ट्स का कमिटीज़ भी बनाया था in order to like ensure ethical governance. See, yes, of course, in today's topic itself, we will try to understand because यहाँ पर आपका सिलेबस में भी है अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस करके, वहाँ पर भी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ गवर्नेंस. गवर्नेंस आपको ऑलरेडी पता है बिकॉज यू माइट हैव रेड इट इन योर GS पेपर 2 अलॉन्ग विथ योर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गवर्नेंस भी पढ़ा होगा. वी विल सिंपली लुक एट व्हाट इज़ गवर्नेंस, देन व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, देन व्हाट इज़ एथिकल गवर्नेंस. ये तीनों भी कवर करेंगे. तो गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस लेकर आने के लिए बहुत सारे कमिटीज़ बना है जिन्होंने लाइक सम सजेशंस रिकमेंड किया है. वी विल लुक एट दोज रिकमेंडेशंस, राइट. दोज रिकमेंडेशंस कैन बी, यू कैन यूटिलाइज देम in your answers, ठीक है, or case studies. So that's how it is going to be helpful. Now let us begin. First let us begin with the problems with public administration. What are the problems that are there in the public administration and what are the ethical concerns in it? That is what we are interested in, ठीक है. So let us begin with this. तो यहाँ पर आप सब हेडिंग लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ एथिक्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. तो एथिक्स, लाइक वी नो दैट देर आर सम एथिकल इश्यूज. we will cover those ethical issues also. We have seen the need, right? Now we will look at what are the problems of ethics in public administration. Why, even though there is a need, why ethics are not being followed or followed but to some extent only. Why not completely? तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स है. ये वाला प्रॉब्लम्स पहले देख लेते हैं. Then we will look at the ethical issues. What kind of ethical issues can arise in the public administration? ठीक है. सो सबसे फर्स्ट द प्रॉब्लम्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें सबसे फर्स्ट आता है, सी व्हेन वी गेट इनटू सर्विस, सो ईच एंड एवरी पब्लिक सर्वेंट विल बी हैविंग समथिंग कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर? It means you might have read it in your polity because both president, governor, they have discretionary powers. There you might have read it. So what is the meaning of discretionary power? It means within your ambit, with whatever the best of your knowledge, since you have occupied certain authority, you are a public servant. So within that ambit you will be given some powers which are within your hand. Like आप अपना मर्जी से करने वाला कुछ powers होंगे. Those powers are called discretionary powers. जब see this discretionary power is not the problem, but when we give discretionary powers, they are being misused and abused. मतलब abuse and misuse of discretionary power is the problem in the public administration. जो discretionary power है उसको misuse कर रहा है या abuse कर रहा है for the personal gains. ठीक है. So that becomes a problem here. तो आपका first point आएगा इसमें misuse of discretionary powers for personal gains. That is first problem. Second problem देख लीजिए. We have rules and regulations. कोई भी एक पॉलिसी या लॉ बनता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पड़ता है. Let's look at how rules and regulations become a problem for public administration. See, generally these are made, rules and regulations are made in order to implement policies and laws. That is good thing. But यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाता है, जब
इस पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, लाइक अनड्यूली importance given to rules and regulations, right? When unduly importance is given to rules and regulations, मतलब strictly going by the book, even जहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन लाइक उसका अप्लीकेशन की वजह से सोशल जस्टिस नहीं हो सकता है, या आपको भी अच्छे से पता है, उस जगह पे भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, तब क्या होगा? ऑब्वियसली गवर्नेंस. सी वाई रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू स्मूथ द गवर्निंग प्रोसेस, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिजिड होकर या अनड्यूली इम्पोर्टेंस देने की वजह से क्या हो रहा है? योर गवर्नेंस प्रोसेस इज going to be hampered. See, let me give you example. देखो कुछ रूल्स, let me tell about the timing itself. एक पब्लिक ऑफिसर का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेट्स से इवनिंग 4 PM तक काम करने का है. लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. एक ऑर्गेनाइजेशन में मॉर्निंग 10 AM to लेकर इवनिंग 4 PM तक. चलो मॉर्निंग आते टाइम उनको कुछ ट्रैफिक कुछ रीजंस की वजह से लेट हो गया, सो हाफ एन आवर डिले होकर 10:30 पे आया था. And that is there itself he has broken that. Now in the evening the time 4 बजते ही, 1 मिनट भी वेट नहीं करना, 4 बजते ही बस my work is done, I'm not going to do any work. ठीक है, तो कोई बहुत ही दूर से कुछ लोग आया है कुछ काम कराने के लिए, वो पब्लिक सर्वेंट से लेट्स से उनको आते आते ही टाइम शाम हो गया. दे एग्जैक्टली रीच द ऑफिस अराउंड से 3:55 पे आया है, और द मोमेंट दे आर गोइंग एंड दे आर टॉकिंग टू द अथॉरिटी, सर हम इतना दूर से आया है, ये वाला काम चाहिए हमें, ये वाला कर लीजिए. तब उन्होंने वॉच देकर बोला है कि नहीं नहीं 4 बज गया, माई ऑफिस टाइमिंग इज टिल 4 PM ओनली, ये रूल है, 4 बजे के बाद मैं काम नहीं कर सकता, ये बोल दिया. सो नाउ लुक एट इट, उस वजह से उनको तकलीफ नहीं हो रहा है. यहाँ पर इट शुड हैव बीन एंटरटेन्ड एंड ही शुड हैव स्टेड बैक, you should have done that work. ठीक है, तो that's what I am saying. Sometimes that is just one example. You can bring many other complex examples also from your side. तब क्या होता है? Even the rules, unduly importance to the rules and regulations and going rigid with them can hamper the administration process. Right? That is the second problem. The third problem is poor redressal and reward punishment mechanism. मतलब क्या है? सी इसकी वजह से क्या होता है, लोगों में पर्टिकुलरली पब्लिक सर्वेंट्स में जब ये पोर रेड्रेसल एंड वेरी पोर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मैकेनिज्म होता है, तो वहाँ पर ये इफेक्टिवली एक्शन नहीं होता है, इफेक्टिवली गवर्नेंस नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? देखो, जब वो पोर रेड्रेसल है, रेड्रेसल मैकेनिज्म पोर, रेड्रेसल का मतलब है कि कोई नुकसान हुआ है, किसी को ग्रीवेंस हुआ है, उसको एड्रेस करना, दैट इज़ कॉल्ड रेड्रेसल. अगर इफ़ दिस ओम्बड्समैन भी बोल सकते हैं आप, इफ़ दिस इज़ नॉट स्ट्रांग, देन क्या होता है, इधर पीपल और पब्लिक सर्वेंट दे फील वेरी डीमोटिवेटेड. जब उनका कुछ ग्रीवेंस हो गया है एंड इट हैज़ टू बी जस्टिफाइड इन ए टाइमली मैनर, वो नहीं होता है तो देन इट विल लीड टू योर लाइक माल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉब्लम विद द एडमिनिस्ट्रेशन. देन सेकेंड थिंग इज, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अच्छा काम कर रहा है, दैट पर्सन मस्ट बी गिवन सम रिवॉर्ड इमीडिएटली. इट कैन बी ए अवार्ड, ए ड्यू रिकॉग्निशन, और इट कैन बी बोनस, और इट कैन बी सम इंसेंटिव. जैसे ये वाला देंगे तो इमीडिएटली क्या होगा, इट विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, इट विल incentivize them and they start doing further and further, right? That will enhance the governance problem, that will enhance the governance process, not problem. Similarly, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट कुछ गलत करता है या करप्शन में इंडल्ज हो जाता है, ठीक है, तो तब देयर मस्ट बी ए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट and it has to be prompt and precise.
प्रिसाइज इन द सेंस इट हैज़ टू कम विद द प्रिस्क्रिप्शंस. अगर ये वाला गलती किया है तो दिस एक्शन शुड बी टेकन एंड इट हैज़ टू बी टेकन इन अ टाइमली मैनर. इट शुड नॉट बी डिलेड. अभी वी कैन सी इट, किसी के ऊपर कुछ करप्शन चार्जेस लगता है and the case goes for like years also, even after having some evidences. If the evidences are not strong, then immediately that has to be dropped. If the evidences are strong, immediately the person has to be punished. ठीक है, ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मैकेनिज्म अगर स्ट्रांग नहीं है तब भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा. सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम हियर. देन अलॉन्ग विद दिस, आर यू राइटिंग राइट? I'm going with the explanations. You start writing. Like the third problem with this is poor reward and punishment mechanism and poor redressal. That is the next. तो इनके लिए आप examples अपना side से लिख लीजिए. Some of the examples I am giving. Some examples you write it from your own side. Okay. Then next big problem is, I was talking about corruption here. So let's take that corruption element. So corruption is also one of the problems in public administration. So it is present, it is like omnipresent from lowest level to the highest level. And it is not just like corruption while coming into that probity and integrity में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था. करप्शन का ना बहुत ही डाइवर्स फॉर्म्स होता है. इट्स नॉट ऑलवेज टेकिंग ब्राइब. सिर्फ ब्राइब लेना ही करप्शन नहीं है, घूस लेना ही करप्शन नहीं है. इसके साथ साथ इफ लाइक इट हैज़ लाइक डाइवर्स फॉर्म्स. इवन किसी से कुछ एक्सपेक्ट करके उनके लिए काम करना भी, दैट इज़ ऑल्सो करप्शन. सपोज ए पर्सन हैज़ कम टू माई ऑफिस, आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, और उस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करते, या इट मे नॉट बी मनी, इट मे नॉट बी मटेरियलिस्टिक, इट मे बी नॉन मटेरियलिस्टिक और समथिंग. उनका कोई आर्ट है या उनका कोई ऐसे ही टैलेंट है जो मेरा काम आ सकता है, तो वो देखकर भी इफ़ आई डू समथिंग फॉर हिम, दैट इज़ ऑल्सो करप्शन. इट हैज़ डाइवर्स फॉर्म्स, इट वेरीज. समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज you generally don't recognize that you are indulging in the corruption because you don't know the meaning of the corruption, कि to what extent we can call it as a corruption. तो ऐसे जगह पे it becomes really difficult and it is present everywhere. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में छोटा से छोटा ऑफिस से लेकर द बिगेस्ट हायरार्कली टॉप मोस्ट लैडर तक इट इज़ प्रेजेंट. So that has to be recognized and that has to be reduced and eliminated. वरना तो क्या होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा. So corruption is another element. ठीक है. Then the next one is, see इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक यू कैन प्रोवाइड इन ऑर्डर टू शो द लेवल ऑफ करप्शन इन इंडिया. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके एक institution है that comes up with these indices. You can refer, you can give the example of those indices. ठीक है, यहाँ पर. ठीक है. Next comes evasive tendency. Okay, evasive tendency is another problem. मतलब क्या होता है evasive? मतलब evade करना. Like you are having lack of initiatives on the part of administrator to face the difficulty situations. मतलब being an administrator you are accountable, you are responsible. लेकिन कुछ situation आता है, I'll give you an example. Suppose say कई बार movies में भी देखा होगा, if there is a complex situation, a ethically dilemmatic situation, उस टाइम पे कुछ authorities क्या करते हैं, they take leave. मतलब ऑफिस से गायब हो जाते हैं. Either they may take like health, sick leave or something, and they do not want to face that situation. They wanted to evade it. They wanted to escape it. ये वाला टेंडेंसी बन जाए, कौन झेलेगा, कौन ये वाला सरदर्द झेलेगा, let somebody take care of it. जब मैं ऑफिस में नहीं आऊँगा, मैं छुट्टी कर लूँगा, तो my subordinate will take charge of it. That person will take care, otherwise somebody else will take care of it. So why should I take this headache?
ऐसे करके ये टेंडेंसी की वजह से भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं होता है. दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ill conceived goals like vested interest, ill ill conceived goals. So this is like your vested interest. So this will also hamper. हमने डिस्कस किया था वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, लाइक पर्सनल इंटरेस्ट. सपोज से आई एम अ पब्लिक सर्वेंट, माई वाइफ इज़ रनिंग ए रेस्टोरेंट. तो बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट मेरे पास कुछ तो पावर्स है related to the tenders. Suppose say there is one let's say one catering needs to be done in one government event. So for that catering the tender can be given to my wife. So that's like what, that's a vested interest. So इसीलिए कई बार ऐसे होता है कि even though my wife is good in catering and all our products are good, still some of the civil servants, like whose spouses or whose relatives are in that business, they abstain from that particular tenders. They saying that it could be having the possible or like a potential conflict of interest because their family members are engaging in that. So they recuse themselves, they abstain themselves from taking no part into that decision making. ठीक है. कई बार जजेस भी करते हैं. जजेस के पास कोई केस आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, अगर उस केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जज का इन्वॉल्वमेंट है, तब जज क्या कह देता है, आई रिक्यूज माई सेल्फ. दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिक्यूजल. I recuse myself from this particular case because there is a potential, there is a possible conflict because I have connection with that case, or I am belonging to that region जहाँ पर ये केस आया था. तो ऐसे रिक्यूज भी कर देते हैं, कई बार न्यूज़ में देखा होगा. ठीक है. सो दैट वी हैव टू डू इट, वी विल सी दैट रिजॉल्विंग. ठीक है. देन along with that, what else can be there? It is another one is crony capitalism. What is the meaning of it? See, the public servants, they may have a nexus with capitalist corporates for the financial gains, and they gain it. Generally this crony capitalism, we see it in political parties as well, politics as well. Sometimes political authorities like political leaders, they get engaged with the corporations for their political funds, party funds. Then once they come into the government, they will be giving some benefits to them. ये वाला nexus होता है. So the same nexus can be seen in the administration as well. That will lead to poor administration. So that is another problem. Then comes lack of communication. What is the meaning of it? Like whatever that you wanted to convey, that has to be clearly conveyed. If मतलब कई बार ऐसे होता है, सीक्रेसी, लेट्स से सीक्रेसी की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से, कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से कुछ चीज़ें हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, एंड कुछ चीज़ें जानबूझकर ही लाइक कम्युनिकेट नहीं करते हैं. दोस आल्सो लीड टू लाइक माल एडमिनिस्ट्रेशन. They also break the public trust on the governance. So these are all the problems that we need to address. ठीक है. We are looking at, as of now, these are the problems that our public administration is facing. And another thing, apart from this, sometimes excessive scrutiny. Where can I write? I'm writing it here. Excessive scrutiny. What is the meaning of scrutiny? It means examination. कई बार excessive scrutiny जो है, that also lead to your maladministration. ये कैसे? देखो, ब्रिटिश राज के टाइम पे या इवन प्री LPG रिफॉर्म्स क्या होता था? They used to be licensing
फॉर ईच एंड एवरीथिंग लाइसेंसिंग यूज टू देयर, एंड इंस्पेक्टर वगैरह आते थे, चेक करते थे. देन इफ एनी वायलेशंस आर देयर देन दे यूज टू फाइन. तो जब ये वाला फाइनिंग ये सब डर के मारे, जैसे ही इंस्पेक्टर आते थे, जो अथॉरिटीज़ वगैरह जो है, दे रेस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड दे स्टार्ट like even though if they are not doing anything wrong, still they start giving them money, मतलब bribery. ठीक है, ये नहीं कि वो कहीं मतलब हमारे बारे में गलत ना बोल दे या कैंसिल लाइसेंस कैंसिल ना कर दे. ये सारे डर के वजह से ये काम करता है. ठीक है, यू कैन सी नाउ इट इज ऑल्सो, सपोज से इफ ए रेस्टोरेंट इज़ वर्किंग, सो वहाँ पर कुछ फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं जो फूड का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक करने वाला. द मोमेंट दो गो देयर, इमीडिएटली क्या होता है, रेस्टोरेंट ओनर्स वो इतना डर जाते हैं. ठीक है, एंड दे स्टार्ट ट्रीटिंग देम वेरी वेल, दे स्टार्ट गिविंग देम लाइक वॉट एवर द डिशेस आर देयर इन द रेस्टोरेंट, एंड देन मनी एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दैट आल्सो लाइक एक्सेसिव स्क्रूटिनी, इफ बार बार अगर स्क्रूटिनी हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है, दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट. ठीक है, तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम इन दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ इस प्रॉब्लम्स के वजह से, ठीक है, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन आवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स व्हाट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ऑलरेडी डिड वी डिस्कस, यस वी डिस्कस्ड वन मोर थिंग. यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो होता है दैट इज सीक्रेसी. ये वाला मैंने डिस्कस किया था बट लिखा नहीं. सीक्रेसी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और यू कैन से कॉन्फिडेंशियलिटी. मतलब कुछ चीज़ ऐसे होता है जिसमें ऑफिशियल सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करना होता है, जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकता है, वहाँ पर उसको मिसयूज़ करने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इश्यूज़. तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव RTI एक्ट. ठीक है, जिसके बारे में वी विल डिस्कस इन दी कमिंग चैप्टर, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस में डिस्कस करेंगे RTI क्या and how it is helping us in reduction of this secrecy and making it more and more transparency. ठीक है, so these are all the problems. Now as a result of it, what are the ethical issues that are there in the Indian administration? Let's look at it. ठीक है, I'm rubbing it up. I hope you have taken. ठीक है, तो अगर कहीं भी कुछ मिस हो गया तो प्लीज़ पास इट एंड रिवाइंड एंड एक और बार देख लीजिए. आई हैव रिटन ऑल ऑफ देम हियर. और नोट्स भी जैसे क्लास में बनाते थे वैसे, लाइक व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग दोज पॉइंट्स के थ्रू आप नोट्स बना लीजिए. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द एथिकल इश्यूज इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ethical concerns and issues. ठीक है, let's look at it, then we will go to the dilemmas. ठीक है, okay, ethical concerns. I'm talking from the perspective of public administration. ठीक है, administration के हिसाब से बात कर रहा हूँ. देन यू कैन ऐड द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. डायलमास वगैरह जब डिस्कस करूँगा तभी ऐड कर देंगे वहाँ पर. ठीक है, डन. तो यहाँ पर एथिकल कंसर्न्स देखो, ये वाला एथिकल कंसर्न्स ये इन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ये वाला आपका हेडिंग रहेगा. इसके अंदर व्हाट आर द कंसर्न्स. सी ये कंसर्न्स के लिए आई एम गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ सेकेंड ERC. See, according to second ERC, it has summed up, it has given some main ethical concerns which are associated with Indian administration. So let's look at those ethical concerns. सबसे first है like the biggest problem that we have discussed, which is corruption.
सो करप्शन इज बिगेस्ट एथिकल कंसर्न इन एडमिनिस्ट्रेशन. जब तक ये करप्शन का एलिमेंट रहेगा तब तक हम कंप्लीटली एथिकल नहीं बन सकते हैं. अगर एथिकल बनना है करप्शन ख़त्म होना चाहिए. करप्शन तब भी ख़त्म होगा जब एथिकल पर्सन्स आर देयर इन दी एडमिनिस्ट्रेशन. सी, यहाँ पर एक दूसरे का लिंक देख रहे हो आप. करप्शन कैन बी reduced, it can even be eliminated if we have ethical administrators who are true, who are committed. मतलब यहाँ पर आपका पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ जो है, फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्वेंट्स जो है, दे आर गोइंग टू प्ले वेरी वेरी बिग रोल. ठीक है, सो दैट इज़ वन ऑफ द एथिकल कंसर्न. देन सेकेंड एथिकल कंसर्न इज़ लैक ऑफ कमिटमेंट. हमने देखा है कमिटमेंट टूवर्ड्स सर्विंग द पब्लिक, पीपल्स फर्स्ट करके हमने एक बात देखा था फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज में. देयर हैज़ टू बी इनेट डिज़ायर इन ऑर्डर टू सर्व द पीपल, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव सीन. सो हियर लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स दैट लीड्स टू like mal administration और ineffective administration. मतलब वहाँ का administration जो है वो effectively नहीं होगा, right? So for that we need to take care of it. We need to provide ethical training and we need to like recruit such people who are committed towards the public service, committed towards the public organization. So this can be built by building loyalty in those administrators, in those public servants, right? So if there is lack of loyalty, so that will lead to lack of commitment towards the cause or towards the institution. As a result, the administration will not be effective, right? That is second problem. Then the third problem is red tapeism. मतलब क्या होता है? Red tapeism का मतलब होता है inordinate delay. We have a saying, right? जो काम कल करने वाला काम आज करो, आज करने वाला काम अभी करो, ये वाला होता है मोटिव. But when it comes to public administration, many offices में the work gets pending. मतलब आज करने वाला काम एक हफ्ते के बाद करो, ठीक है? ये कोई जल्दीबाजी नहीं. जब तक उनको ऊपर एक प्रेशर नहीं पड़ता है तब तक they are not doing it. फर्दर एक और चीज़ आपको समझना होगा. See, in the public administration there is a hierarchy. Each office में there is a hierarchy. सो लोवेस्ट स्टेटस से लेकर टॉप मोस्ट पोजिशन तक व्हेन वी आर डूइंग सर्टेन एक्ट देयर इज़ ए फ्लो. अगर ये फ्लो में कहीं भी ब्रेक लग गया है देन व्हाट विल हैपन? दैट विल लीड टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शनिंग है वो रुक जाएगा. लेट मी से हाउ इट वर्क्स. सपोज से हियर इज ऑफिस बॉयज आर देयर, वर्कर्स आर देयर हु मतलब हाउस कीपिंग सेक्शन है, वो आकर सुबह सुबह लेट्स से ऑफिस को क्लीन कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है. दे आर मेकिंग द ऑफिस रेडी फॉर फंक्शनिंग. देन लेट्स से क्लरिकल पोस्ट हैं, क्लर्क्स पियोन्स वगैरह, वो आएंगे बाकी सारी चीज़ें लाइक रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिकॉर्ड लाइक कौन सा फाइल्स वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें मैनेज करके रखेंगे. देन यू हैव लाइक नेक्स्ट लेवल पर्सन्स हु स्क्रूटिनाइज हु अप्रूव, ठीक है? ऐसे डिफरेंट कैटेगरी में जाएगा. लास्ट में यू हैव दैट हेड हु गोज थ्रू ऑल दिस एंड हु फाइनली हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रूव इट, ठीक है? तो अगर यहाँ पर इस एंटायर प्रोसेस में कहीं भी ब्रेक होता है, सपोज थे उस दिन क्लर्क नहीं आया, सो वॉट एवर द फाइल्स दैट नीड्स टू बी चेक्ड, और उस दिन क्लर्क का मतलब कुछ इशू हो गया, एज ए रिजल्ट ऑफ इट
द पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल इन दी ऑफिस। सो वो जो फाइल है कहाँ रखा है सिर्फ इस पर्सन को पता है, ठीक है, या उसको कैसे मैनेज करना है, कौन सा फाइल्स का क्या डेट है, ये सारी चीज़ें इसको पता है। वो ना होने की वजह से क्या हो रहा है, दैट एंटायर वर्क विद रेस्पेक्ट टू दैट फाइल इज़ बीइंग स्टॉप्ड हियर डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज अदर पर्सन्स, ठीक है। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी वर्कर्स है, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, दे नीड टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। जहाँ पर भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोऑपरेशन कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू डिले इन दैट डिलीवरी ऑफ द सर्विस आर गुड। सो दैट इज़ कॉल्ड रेड टेपिज्म, एंड वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। देन अनदर प्रॉब्लम ऑफ like Indian administration is accountability। मतलब lack of accountability and responsibility। मतलब रोल्स को लेकर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं जगह पे इट्स लैकिंग, इट्स नॉट वेल डिफाइंड। जब ये होता है, द पीपुल दे सिंपली डू देयर वर्क, नेम सेक के लिए कर लेते हैं, दे डोंट टेक इट लाइक एज ए रिस्पॉन्सिबल जॉब। देयर रोल निभाना जो है जस्ट मैकेनिकली फुलफिल करना, नॉट बीइंग मोर अकाउंटेबल। सी दैट कम्स फ्रॉम योर कमिटमेंट आल्सो, ठीक है, लिंक है। तो जब लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है, यू आर गिवन ए टास्क but you are not held answerable, you are not held accountable, तब ऑटोमेटिकली उस टास्क का पूरा करने का या कंप्लीटली परफॉर्मिंग दैट टास्क, उसका जो एम्बिट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बिकॉज नोबडी इज़ लुकिंग एट यू, नोबडी इज़ गोइंग टू से एनीथिंग, ठीक है। See, sometimes these public servants in the administration, as a result of their authority and their position, like being a, let's say, DM or SDM or some other authority, it may be a tehsildar or so there comes arrogance, like a kind of, we can say, a kind of bad attitude. हाँ, मैं this is my position, why should I, हाँ मैं ये ऑफिसर हूँ, मुझे क्यों करना है, ये वाला एरोगेंस, ये प्राइड वाला फीलिंग एंड इनडिफरेंस वाला फीलिंग, एरोगेंस एंड इनडिफरेंस ये आ जाता है। इफ़ इट कम्स देन ऑटोमेटिकली इट विल हैम्पर द वर्किंग ऑफ दैट पर्सन। मतलब अपना ईगो एलिमेंट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड इवन स्मॉल एक्शंस जो उनसे किया जा सकता है, दैट पर्सन विल स्टार्ट लाइक बिहेविंग एरोगेंटली। अच्छा, तुम मुझे बताओगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम ए, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट आल्सो, आई एम ए पब्लिक सर्वेंट, लेट्स से आई एम ए तहसीलदार। कोई एक पर्सन आया है मेरे पास कुछ काम कराने के लिए, और मैंने बोला है कि अभी नहीं हो पाएगा, कुछ और है। देन द पर्सन सेज, सर नहीं सर, ये वाला ये काम ऐसे करना था, ये तो 5 मिनट का काम है, ये आप देख कर लीजिए। अच्छा, तुम बताओगे मुझे कैसे करना है, फिर आओ तुम ही कर लो काम। ये कई बार बोलते हैं, सुना भी होगा। सो दैट एरोगेंट फीलिंग आ गया, या इनडिफरेंस में मुझे नहीं करना है, जो करना है कर लो, मैं नहीं करूँगा काम, मैं नहीं करूँगा साइन, डू वॉट एवर यू कैन, ये भी सुनते हैं कई बार हम। तो ये एरोगेंस एंड इनडिफरेंस वाला फीलिंग जब आते हैं तब ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रेक लग जाएगा, राइट। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, देखो दिस इज़ अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कई बार इसका इतना ये हो गया है कि कई बार एक पर्सन का हॉनेस्टी जो है वो लेवल ऑफ लाइक हाउ मेनी ट्रांसफर दैट पर्सन गॉट, उस पर भी देखते हैं। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक सिविल सर्वेंट्स जो है उनको आफ्टर बीइंग हॉनेस्ट एंड एथिकल, तो उनको कई बार ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब हॉनेस्ट है, कोई गलती नहीं करेगा, दे आर नॉट गोइंग टू बेंड द रूल्स,
तो तब क्या है, वहाँ का पॉलिटिशियन हो या कोई बड़ा आदमी हो या कॉरपोरेशन है, वो क्या करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उनको ट्रांसफ़र करा देते हैं, राइट. So as a result of these frequent transfers, administration in that particular location, it hampers. So that is another problem in the Indian administration. And like I said, I was talking about the nexus. Okay, the nexus of individuals, nexus of public servant. मतलब nexus का मतलब है कि टाई अप होना with, it may be politicians के साथ, or it may be with the corporations, or it may be with like some of the organized crime वाला people. ऐसे इन लोगों के साथ when they tie up, automatically they will be bending for the whims and whips of those big heads. As a result, the administration in that will not be good. And similarly, वहाँ पर करप्शन, रेटिज्म, ये सब बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है, राइट. इनजस्टिस हो जाता है. सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. कहीं ना कहीं हर एक प्रॉब्लम आप अपना लाइफ में डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा, डेफिनेटली देखा होगा, ठीक है. अब मान लो लास्ट वाला कि नेक्सस का ही बात करते हैं. इफ़ देर इज़ ए पुलिस पर्सन, पुलिस ऑल्सो ए पब्लिक सर्वेंट, ठीक है. पुलिस इज़ देयर, इंस्पेक्टर लेट्स से, एंड ही सर्विंग इन ए लोकेशन. उस लोकेशन का कोई ना कोई तो सोशली हाई पोजीशन वाला, सोशल स्ट्रक्चर वाला पर्सन तो होगा. तो वहाँ पर इस इंस्पेक्टर, when that person or any of the members of that person, if they commit some crime, ऑटोमेटिकली ये पुलिस पर्सन का ड्यूटी है उनको अरेस्ट करना एंड ब्रिंग दैट justice to the victims. But since the police person gets attached or gets in tie-up with that big landlord or whoever the person, so as a result of it, he starts like ignoring that incident or trying to save those people who have committed that crime. ये वाला होता है. ये मूवीज़ में देखते हैं कई बार हम, ठीक है. हर मूवी में ऐसे कोई ना कोई कैरेक्टर तो होगा, ये सब दिखाते हैं, ठीक है. तो ऐसे दैट इज़ अनदर सिचुएशन, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. एथिकल कंसर्न. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वी आर हैविंग दोज एथिकल प्रॉब्लम्स, राइट. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स in the administration and ethical concerns in the administration, ठीक है. As a result of it also we are having, like you can put it under problems in the Indian administration, ठीक है. Ethical concerns in the Indian administration. Now let us understand what is the concept of dilemma. First we'll understand what is dilemma, what is ethical dilemma, and how dilemmas are arised in the public institutions and private institutions. मतलब ये वाला पोर्शन समझ लेते हैं. अब पहले एथिकल डायलेमास इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन देखेंगे, देन एथिकल डायलेमास, ठीक. थोड़ा सा काम आ जाएगा, राइट. यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डायलेमा. सो व्हाट इज अ डायलेमा? आप खुद ही तो डायलेमा में नहीं पड़ गए ना, डायलेमा को सुनकर. सी डायलेमा, इट सिंपली मीन्स डायलेमा it refers to, you can write it if you want. Dilemma refers to a situation in which a problem is offering a situation in which you have two solutions, but neither of them, मतलब neither solution 1 nor solution 2, neither of them
are practically acceptable. मतलब क्या है, आपके पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन डील करने के लिए यू हैव टू सिचुएशंस, ठीक है, बट बोथ ऑफ देम दे आर नॉट कंप्लीटली एथिकली फ्री और कंप्लीटली राइट नहीं है, या कंप्लीटली दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल वंस. इसका मतलब है कि इवन इफ यू गो विथ एनी ऑफ दीज ऑप्शंस, थोड़ा सा तो हार्म डेफिनेटली होगा या थोड़ा सा तो इनजस्टिस होगा. तो ऐसे दो सिचुएशंस है. सो यू विल बी हैविंग लाइक डायलेमा, यार ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी माय कोर्स ऑफ एक्शन. इस रास्ते से जाना है, उस रास्ते से जाना है. तो दोस आर द थिंग्स कॉल्ड डायलेमास. ठीक है. सो इस डायलेमास को कैसे डील करना है, और मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कैसे डायलेमास आता है, लेट्स लुक एट इट. ठीक है. सी इट इज़ लाइक दिस इज़ व्हाट डायलेमा इज. नाउ व्हाट इज़ एन एथिकल डायलेमा. लेट्स से डायलेमा क्या है, यहाँ से आप ध्यान दो. ठीक है. कुछ समझ नहीं आया तो पूछो. ठीक है. नाउ गाइस, डायलेमा इज़ व्हाट वी हैव लाइक अ सिचुएशन, मतलब वी हैव ए पर्टिकुलर एक्शन जहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं. कोई भी रास्ते पे जाएंगे आपको कंप्लीट जस्टिस नहीं मिलने वाला है, मतलब दोनों के रास्ता प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल नहीं है. ऐसे सिचुएशन को हम डायलेमा कहेंगे. नाउ व्हाट इज़ एन एथिकल डायलेमा. प्लीज़ आप भी अटेंशन दो, लाइक ऑनलाइन स्टूडेंट्स. सी एथिकल डायलेमा इट रेफर्स टू ए सिचुएशन where you have two solutions. If you are going with either of the solution, either of the way which is not going to be like a situation where you have two possible ways and neither of the ways are completely ethical. मतलब आप एथिकल मैनर पे एक काम करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन पे ऐसे काम करते टाइम आपको ऐसा सिचुएशन मिल गया है. अब आपके पास कुछ रास्ता है, आप कोई भी रास्ता के थ्रू जाएंगे, यू आर गोइंग टू फेस सम एथिकल प्रॉब्लम्स. मतलब जस्टिस, एथिकली जस्टिस कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, एथिकल डायलेमा कहते हैं. ठीक है. अब देखो, जब एज ए पब्लिक सर्वेंट हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं सिविल सर्वेंट के जैसे, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोई एक वर्कर के जैसे काम करते हैं, एम्प्लॉय के जैसे, तब भी क्या होगा, वी विल बी कमिंग अक्रॉस विथ सच सॉर्ट ऑफ डायलेमास. क्योंकि इससे पहले जस्ट नाउ आई हैव मैंने प्रॉब्लम्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझाया है. वहाँ पर करप्शन, देन पॉलिटिकल नेक्सस या इनडिफरेंस, एरोगेंसी, ये सारे प्रॉब्लम्स अभी देखा है. उन सब रीजंस के वजह से कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन मिलेगा जहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग में वट एवर द डिसीजन दैट यू टेक, समवेयर आपका वैल्यूज़ जो है वो एथिकल वैल्यूज़, दे आर नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटली जस्टिफाइड. ठीक है. ऐसे सिचुएशन को हम कहेंगे एथिकल डायलेमा. राइट. सो एथिकल डायलेमा होने के लिए मतलब कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, सबसे फर्स्ट एथिकल डायलेमा को डील करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या एथिकल डायलेमा है. सो एथिकल डायलेमा के लिए थ्री एसेंशियल एस्पेक्ट्स है. ठीक है. ओके, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस. So what are these three ethical aspects, three essential aspects? Number one, first है वहाँ पर no perfect solution. मतलब आप कोई भी रास्ता चुनो, वहाँ पर perfect, that should not be the perfect one. अगर perfect solution है तो फिर डायलेमा ही नहीं है. डायलेमा तभी होता है जहाँ पर आपका perfect solution नहीं है.
तो देयर शुड नॉट बी एनी परफेक्ट सोल्यूशन। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है डिसीजन हैज टू बी मेड मतलब क्या है, आपके पास रास्ता है ही नहीं, पक्का आपका एक्शन तो लेना ही होगा, कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही होगा। मतलब दोनों साइड से आपको टाई अप कर रहा है। एक साइड से क्या है, आपके पास कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, दूसरा साइड से है अगर परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है तो आप आइडियली बैठने के लिए भी रास्ता नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो डिसीजन प्रॉम्प्टली लेना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक्शन तो करना ही पड़ेगा। देन एट द सेम टाइम you have a choices like multiple like more than one solution has to be there, more than one solution has to be there, but however मतलब आपके पास मोर देन एक रास्ता होना चाहिए वो वाला काम करने के लिए, बट कोई भी रास्ता परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता चुनना ही पड़ेगा आपको। समझ रहे हो ना? तीनों जगह से आप एक बार देखेंगे, आपके पास एक काम करने के लिए यू हैव मोर देन वन वे ऑफ डूइंग इट, बट कोई भी काम परफेक्ट नहीं है। एट द सेम टाइम आपको कोई ना कोई के थ्रू जाना ही पड़ेगा। तो अब आपका डायलेमा हो जाएगा, यार किस तरीके से जाऊँ मैं, जी इस तरीके से जाऊँ ये वाला प्रॉब्लम, इस तरीके से जाऊँ ये वाला प्रॉब्लम, इस तरीके, तो तब आप खुद डायलेमा में पड़ जाएंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एथिकल डायलेमा विथ रिस्पेक्ट टू एथिक्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट में कैसे आता है, कब कब होता है, लाइक व्हाट आर द लाइक व्हेन आर द सिचुएशंस इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पब्लिक सर्वेंट्स फील डायलेमास, वो वाला देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, राइट। नाउ लेट अस लुक एट ethical dilemmas। सब हेडिंग लिख लीजिए, ethical dilemmas faced by public servants। कब कब होगा? ठीक है, तो अब बताओ, अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट है, कब हो सकता है आपके पास डायलेमा? डिसीजन for making any policy। ठीक है, तो उस टाइम पे भी कब हो सकता है? जनरली है तो नॉर्मली है तो अब डिसीजन ले लेंगे, लेकिन वहाँ पर भी तो कुछ कंडीशंस पे होगा ना वो वाला ऐसे सिचुएशन। लेट मी टेल यू। सो फर्स्ट होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका खुद का इंटरेस्ट एक है, ठीक है, यहाँ पर लाइक एक सिचुएशन है जहाँ पर सी आप एज ए इंडिविजुअल है, मतलब आप एक इंसान भी है, एट द सेम टाइम आप एक रोल भी निभा रहे हैं। व्हाट इज़ दैट रोल? पब्लिक सर्वेंट। सो बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट आपका एक्शंस बिहेवियर्स अलग होंगे। आपका मेन गोल है आपका जॉब करना है, पब्लिक सर्विस करना है। नाउ बीइंग एन इंडिविजुअल आपका सेपरेट इंटरेस्ट है, पर्सनल लाइफ है। अब देख लो कई बार ऐसे होता है, लेट मी टेल यू। अब फॉर एग्जांपल आपका फैमिली मेम्बर का तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, यू आर इन द ऑफिस, आपको कॉल आया है, तो एक साइड है आप पब्लिक सर्वेंट है, एक साइड है उसी टाइम पे एक पब्लिक के साथ, पब्लिक वहाँ का लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जहाँ पर आप एक पब्लिक पॉलिसी के बारे में उनको समझाने वाले थे और कुछ लेट्स से एक गवर्नमेंट का सर्विसेज जो है या कुछ गुड्स है वो डिलीवर करने वाले हैं, वो वाला इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। उसी टाइम पे आपका वाइफ या आपका मदर या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है। अब देखो आप बीइंग इन दैट ऑफिस आपके पास ये वाला डायलेमा आ जाएगा, तो आपको इधर पब्लिक ऑफिस को चुनना पड़ेगा, पब्लिक ड्यूटी को, क्योंकि वो मीटिंग कहीं 1 साल से प्लान कर रखा है। ये वाला मीटिंग उस दिन होगा जिस दिन सारे लेट्स से जो पट्टा जिसको बोलते हैं ना रिकॉग्नाइज्ड लैंड रिकॉर्ड जो बोलते हैं पट्टा, वो देने वाले हैं पोर पीपल को। और दूसरा है आपका फैमिली मेम्बर हेल्थ इज़ नॉट वेल। अब आप ये वाला 2 रास्ते हैं, आप एक तो जाकर फैमिली को अटेंड कर सकते हैं, तब आपका ड्यूटी का
जो भी है, मतलब इतना दिन से प्लान करके आ रहा है वो इम्पोर्टेंट इवेंट, वो सब रुक जाएगा। उसके वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, लेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस पे उम्मीद रख के बैठे हैं। या आप ये वाला काम कर सकते हैं, पब्लिक ऑफिस का काम। अगर ये वाला काम करेंगे तो क्या होगा, आपका जो पर्सनल लाइफ में जो रिलेटिव है या जो भी आपका वाइफ या जो भी है, उनका तबीयत अगर सीरियस हो गया तो यू मे लूज़ देम आल्सो, खो भी सकते हैं। तो तब आपके पास एक डायलेमा आ गया। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज व्हेन प्राइवेट इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, when they conflict with each other, तब आपको डायलेमा हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली कुछ और हैं, कुछ आपका पर्सनल वैल्यूज़ होते हैं और कुछ एथिकल वैल्यूज़ या कुछ ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूज़ है। लेट मी टेल यू, व्हेन यू हैव लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आपका पर्सनल वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों कई बार साथ भी नहीं जा सकते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया था, एज ए पब्लिक सर्वेंट आपका पब्लिक इंटरेस्ट जो है, पब्लिक वैल्यूज़ जो है या इंस्टीट्यूशन का या उस पर्टिकुलर ऑफिस का वैल्यूज़ जो है वो है पीपल को सर्व करना, उनको पट्टा वगैरह जो हम कमिटमेंट कर रखा है वो दे देना। और आपका पर्सनल वैल्यू है आपका फैमिली को प्रोटेक्ट करना, आपका फैमिली का साथ देना जब व्हेन दे नीड इट, उसको सपोर्ट करना आपका पर्सनल वैल्यू है। दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो गए है कि नहीं? तब इस आल्सो दैट इज़ ए सिचुएशन। सो सेकेंड वाला सिचुएशन है गाइस, कब आता है? व्हेन देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, केस स्टडीज़ में ये सारी चीज़ें हम नोटिस करेंगे। कई बार केस स्टडीज़ को डील करते टाइम से केस स्टडीज़ विल बी डन बाय अनदर फैकल्टी as we have discussed, but however you can utilize this information there, right? Case conflict between personal and private values or personal and public values, I should say personal and public वैल्यूज़। पब्लिक ऑफिस का कुछ वैल्यूज़ होगा और पर्सनल वैल्यूज़ कुछ होंगे, तो उसके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तब इशू आ जाता है। फॉर एग्जांपल सी, एक और कंटेम्प्रेरी एग्जांपल बात करते हैं जो रीसेंट टाइम्स में है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो गया था। आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है? पूरा आपका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होगा, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका रेटिना स्कैन, आपका थंब प्रिंट्स, ये सब चीज़ें। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होता है, आपका एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी सब होगा। आपका बैंक से जुड़ा होता है, बैंक डिटेल्स भी है, आपका पैन कार्ड, सब चीज़ से जुड़ा है आधार। तो when you are collecting the personal information, तो हमारा एक पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल वैल्यू है राइट टू प्राइवेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है। बट जब आधार कार्ड का डेटा सब चीज़ें आपके पास आ जाता है, दैट मीन्स यू आर हैविंग द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्सन। इतना तक है कि उनका मोबाइल नंबर पता है, उतना बैंक अकाउंट पता है, उनका एड्रेस भी पता है। सो दिस कलेक्शन ऑफ इट इज़ मैंडेटेड बाय द आधार, जो आप बीइंग एन ऑफिसर आपको करना ही करना होगा आधार डिटेल्स को लेकर। लेकिन आपका पर्सनल बिलीफ है किसी का भी प्राइवेसी को नहीं तोड़ना है, वहाँ पर नहीं इंक्रोच होना है, तो राइट टू प्राइवेसी वो वाला मानते हैं। अब देखो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दैट इज़ अनदर थिंग वी कैन गिव एज एन एग्जांपल हियर, राइट गाइस? इज द एग्जांपल। ओके, नाउ थर्ड चीज़ कहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कहाँ पर हम एथिकल डायलेमा फेस कर सकते हैं, ये है कि व्हेन देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट, प्लीज राइट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन professional ethics versus the demand of superiors. अब देखो, आपका कुछ प्रोफेशनल एथिक्स इन द सेंस ड्यूटी एथिक्स, आपका ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम आपका कुछ ड्यूटी एथिक्स होते हैं, ठीक है?
और वी हैव रेड अबाउट ड्यूटी एथिक्स इन डिओन्टोलॉजी. आई टोल्ड यू अबाउट इमैनुअल कैंट एंड ड्यूटी एथिक्स. ओके, तो यहाँ पर देखो, सपोज आप एक पुलिस ऑफिसर है, आपका एज अ पुलिस ऑफिसर आपका प्रोफेशनल एथिक्स है, कोई भी क्राइम करता है, क्रिमिनल को पकड़ना, उनको मतलब क्रिमिनल जस्टिस, मतलब जस्टिस दिलाना जो विक्टिम्स है, जिसको नुकसान हो गया, दैट इज़ योर ड्यूटी. मान लेते हैं कि एक जगह पे आप पुलिस ऑफिसर है और वहाँ पर कोई क्राइम हुआ है और आपने पकड़ भी लिया है, जो क्रिमिनल किया था उनको पकड़ भी लिया है. लेकिन पकड़ने के बाद उस क्रिमिनल बहुत ही बड़ा आदमी है, उसका कुछ कॉन्टेक्ट्स है, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके आपका बॉस, लेट से आप इंस्पेक्टर है तो आपको लेट से डीजीपी या डीएसपी से आपको फ़ोन आता है, फ़ोन आकर बोलता है कि नहीं उसको छोड़ दो, डोंट अरेस्ट हिम, ये वाला. सो तब क्या होगा, आपका डिमांड ऑफ द सुपीरियर, यू हैव टू परफॉर्म, क्योंकि यू हैव टू बी नो ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर. बट ये रिटर्न ऑर्डर्स नहीं है, वो अपना वर्ड्स में बोल रहा है, वर्बल भी बोल रहा है, छोड़ो उसको, छोड़ दो, तुम कुछ मत करना, तुम्हें कुछ बेनिफिट मिला देंगे, तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, ये वाला कुछ बोला है ऐसे. तो अब आपका कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि नहीं आ गया. आपका ड्यूटी एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स कहता है, आप जिसके लिए कसम काकरी वाला ड्यूटी में आया है वो कहता है जो पर्सन क्राइम करता है उनको जेल के बिहाइंड द बार्स द पर्सन शुड बी देयर. बट आपका सुपीरियर ने बोल दिया है कि नहीं उसको छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ा तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे हम, ये वाला डरा भी दिया. तो अब देखो कॉन्फ्लिक्ट हो गया. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ सिचुएशन वेयर यू कैन हैव लाइक, ये तो सुपीरियर वाला का है. कई बार ऐसे होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, लॉस etc. versus your performance of duty. मतलब जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इन दोनों के बीच में, मतलब लेट मी टेल यू, एज ए पब्लिक सर्वेंट आपका कुछ गोल है, आपका कुछ रोल है, आपको ये वाला रोल निभाना है. तो उस रोल निभाने के लिए आपके पास कुछ लॉस इम्प्लीमेंट कर रखा है, कुछ रूल्स दे दिया गया है, कुछ रेगुलेशंस बताया गया है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताया है कि आपको ऐसे बिहेव करना है, इस तरीके से आपको काम करना होगा, ये बताया है. लेकिन इस रूल्स की वजह से कई बार ये वाला ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं आप. ठीक है, लेट मी से पब्लिक ऑफिस का टाइमिंग्स या पब्लिक ऑफिस स्ट्रिक्टली ऐसे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है. लेट से एक ऑफिस का टाइमिंग वो है. अब ये वाला टाइम पे आप काम कर लिया, बट पब्लिक सर्वेंट है आप, उस जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर रात को कुछ लोग आया है बहुत ही इमरजेंसी पे, आप आकर बोला है कि सर मेरा सिचुएशन ये है. ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ मदद कर लीजिए, ये सुबह तक ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, सुबह तक मेरा, लेट्स से एक स्टूडेंट आ गया है, सर सुबह तक मेरा एडमिशन के लिए ये वाला डॉक्यूमेंट अभी वो लेटेस्ट मांग रहा है, तो मैं इतना दूर गया था, वहाँ से वापस आते आते मुझे इतना रात हो गया है, अब ये वाला डॉक्यूमेंट लेकर जाके कल सुबह तक मुझे वहाँ पर सबमिट करना है. अगर ऐसे करना है तो मुझे थोड़ी देर में मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, तभी जाकर मैं ये सबमिट कर पाता हूँ. लेकिन आपका रूल कहता है अब विद इन वर्किंग आवर्स ओनली यू कैन डू दैट. ठीक है, क्योंकि ऑफिस में होंगे वो सील वगैरह जो भी है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो भी प्रोफार्म वगैरह है, दैट इज़ नॉट एट योर होम. तो आप करना चाहते हैं, आप अपना ड्यूटी तब भी परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन जो रेगुलेशंस रूल्स जो बनाया गया है वो आपको रोक देता, नहीं अब नहीं करना है. तो तब आप क्या बोलेंगे, देखो मैं मजबूर हूँ इस सिचुएशन में, मैं मदद करना चाहता हूँ तुम्हें लेकिन कर नहीं पाऊँगा क्योंकि सब कुछ ऑफिस में है, मैं यहाँ पर आपको मदद नहीं कर पाऊँगा. तो उस वजह से क्या होता है कि उस स्टूडेंट का एडमिशन रुक गया. अब देखो ये इनजस्टिस हो गया. अब जिस काम के लिए आया है, आपका मेन मोटिव ये है वही पब्लिक को सर्व करना है, आप सर्व नहीं कर पाया. तो कई बार ऐसे भी सिचुएशन बनता है. ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से भी हो सकता है. कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि लोगों से कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेना है, वो ब्राइब में माना जाएगा, ये डिस्टेंस प्रोफेशनली ट्रीट करना है. लेकिन आप कोई डिस्टेंट गाँव में गया है जहाँ पर लोग अपना मतलब प्यार से आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप बीइंग ए स्ट्रिक्ट पर्सन, बीइंग नो अडहेरिंग टू दिस कोड ऑफ कंडक्ट, आप बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं ले सकता,
तो लोगों का फीलिंग्स हर्ट हो जाएगा, तो फिर वो आपके पास जो अप्रोचेबिलिटी बन रहा था वो रोक लेंगे। अरे यार ये तो मतलब बात तक भी नहीं कर रहा है, हमने जो इतना प्यार से दिया वो भी नहीं ले रहा है, ठीक है। सो वो रोक देगा उनको अपने आप को, दे वोंट बिकम लाइक प्रॉक्सिमिटी टुवर्ड्स यू विल स्टॉप देयर। तो ऐसे कई बार ये वाला भी कॉन्फ्लिक्ट कर देता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। नेक्स्ट, एक और जगह पर होता है जहाँ पर आपका पब्लिक वेलफेयर, लिख लीजिए पब्लिक वेलफेयर, इज इट विजिबल? हाँ, पब्लिक वेलफेयर वर्सेस प्रोफेशनल कमिटमेंट। मतलब कुछ गोल्स होता है बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, बीइंग दैट प्रोफेशनली, जब आप अपना काम कर रहे हैं आपके पास कुछ गोल्स होता है। सी लेट्स से एक है कि इंदिरा आवास योजना या पीएम आवास योजना कर रहे हैं हम, मतलब घर बना रहे हैं। तो अभी इलेक्शंस आने वाला है, तो गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स वगैरह जो है, मिनिस्टर्स वगैरह, उन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे दिया 1 मंथ के अंदर हमें 1 करोड़ घर बनाना है। वो हमारा टारगेट है, हम रीच करना चाहते हैं ताकि हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये जो दिया है फुलफिल करके लोगों को बता पाए, हम इसको यूज़ करें। आपको ऑर्डर्स मिल गया है, अब आपको ये कमिटमेंट ऑफ 1 करोड़ घर जो है वो पूरा करना है। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू इंश्योर द पब्लिक वेलफेयर आल्सो। बट ये कमिटमेंट और गोल की वजह से टाइम कम है। 1 महीने के अंदर 1 करोड़ घर कहाँ से बना पाएंगे? पॉसिबल भी नहीं होगा। घर बनाने के लिए कम से कम 6 महीने टाइम बढ़ता है, तो ये नहीं हो पाएगा। तब क्या करेंगे आप? इन ऑर्डर टू कमिट, इन ऑर्डर टू शो दैट गोल्स, पेपर पे दिखाने के लिए कोशिश करेंगे जहाँ पर रियल में नहीं होता है। तो तब एक्चुअली जो आप दिखा रहे हो दैट इज़ देयर ओनली ऑन द पेपर, जस्ट टू शो द कमिटमेंट, बट एक्चुअली पब्लिक के लिए वेलफेयर हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी सिचुएशंस कई बार मिलता है जहाँ पर एक्चुअल पब्लिक के लिए एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है पब्लिक के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट आता है लाइक लेट्स से आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट है। एक और एग्जांपल इसी के लिए बोलता हूँ कि आप लेट्स से देयर इज़ वन स्कीम कॉल्ड पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है। ओल्ड एज पेंशन देते हैं गवर्नमेंट, मतलब जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको महीने में खुद कुछ पैसे एज ए पेंशन अमाउंट देते हैं ताकि उनका खर्चा वगैरह निकल जाए, ठीक है। तो ओल्ड एज पेंशन देने के लिए लेट्स से कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होता है कि इतना पेंशन इतने लोगों को देना है, सब लोगों को इंक्लूड करना है, और उनको इंक्लूड करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए होगा। ये सर्टिफिकेट हो सकता है, उनका राशन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ये सारे बैंक अकाउंट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, ये वाला है। बट देयर इज़ अ पर्सन, लेट्स से दैट पर्सन इज़ वेरी ओल्ड बट द पर्सन डजंट हैव बैंक अकाउंट, द पर्सन डजंट नो बैंक अकाउंट, ठीक है, अभी तक कभी बनाया नहीं। तो उस पर्सन बुजुर्ग है, उनके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो गया आपके पास आया, सर मुझे ओल्ड एज पेंशन चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किया, बोला है कि नहीं इसमें तो नहीं कर सकते हम, इसके लिए आपका बैंक अकाउंट भी चाहिए। या बैंक अकाउंट छोड़ो, बैंक अकाउंट तो फिर भी ठीक है, आसान से बन जाएगा। लेट्स से एज प्रूफ का सर्टिफिकेट चाहिए। तो बुज़ुर्ग पर्सन है, उस टाइम पे उनका डेट ऑफ बर्थ उन्होंने मेंशन भी नहीं किया है, अंदाज़ा से बता देते कि क्या उम्र है उनका, तो मेरा 50 हो गया होगा, 60 हो गया होगा, अंदाज़ा से बताते हैं। अब इस पर्सन के पास आया है वो पर्सन, जैसे पब्लिक सर्वेंट ने बोला है कि देखो आपको ये पेंशन देने के लिए मुझे आपका एज का प्रूफ चाहिए, आप जाकर एज का सर्टिफिकेट लेकर आओ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। वो कहाँ से लेकर आएंगे, वो क्या प्रोसीजर है उनको नहीं पता है। मान लेते हैं कि पता करके उन्होंने गया, तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार से मांगने लगा। तहसीलदार पूछेंगे कि क्या प्रूफ है, मैं कैसे दूं, आपका एज इतना है, क्या प्रूफ है, कोई इससे पहले सर्टिफिकेट है या कोई रजिस्ट्रेशन करवाया आपने बर्थ। उस टाइम पे जैसे बुज़ुर्ग बोल रहा हूँ तो 60 प्लस हो गया होगा, उस टाइम पीरियड पे इतना रजिस्ट्रेशन वगैरह अच्छे से नहीं होता था, उन्होंने नहीं करवाया। अब कैसे वो लेकर आएंगे, और उसके बिना इनको ये पब्लिक वेलफेयर जो पैसे है वो नहीं मिलेगा। अब देखो पब्लिक वेलफेयर आपको भी पता है, उनको देखते ही, बुजुर्ग लोगों को देखते ही पता चल गया, हाँ इनका अंदाज़ा से
60-65 हो गया होगा उम्र, बट फिर भी डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आपका प्रोफेशनल रोल और आपका रूल्स जो है वो दोनों रोक देता है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट करके। आपको खुद बुरा लगेगा, अरे इस पर्सन को मिलना चाहिए, बट आपका जो रोल है वो आपको रोक लेगा, नहीं यार अगर मिलना है तो इस रूल्स के हिसाब से डॉक्यूमेंट है तभी मिलेगा, तो उस टाइम पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। सो दीज आर ऑल द वेरियस डायलेमास दैट वी कैन फेस, ठीक है। यस, अब देखो डायलेमास इन द पब्लिक ऑफिसेस वी हैव कवर्ड। अब इसको कैसे रिजॉल्व करना है, व्हाट आर द वेज, क्योंकि जब भी आपको कुछ डायलेमा आता है उसको रिजॉल्व करना होगा, तो इनको कैसे रिजॉल्व करना है दैट वी विल सी इट। मतलब किस तरीके से हम बिहेव करेंगे तो वो बेस्ट माना जाएगा। कई बार से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही ये है कि डायलेमा का मतलब ही ये है कि वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, हाँ, परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, दैट वी विल सी, ठीक है। सो आपका हेडिंग रहेगा रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास, रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास। नंबर 1, हाँ, एक देखो फर्स्ट, हमेशा वेन एवर यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, हमेशा आप क्या करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे देन प्राइवेट इंटरेस्ट। अगर जो भी काम जहाँ पर आपका पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ पर आपका एक्शन कैसे होना चाहिए, यू हैव टू प्रायोरिटाइज पब्लिक लाइफ, ठीक है, ग्रेटर गुड, पब्लिक गुड के लिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ग्रेटर गुड वी वांट। एंड ये वाला आपको क्या दिखाता है, व्हेन यू आर डूइंग दिस, सी आप जब इस पब्लिक सर्विसेज में आ रहे हो, कोई भी जॉब ले रहे हो, तभी आपने एक ओथ ले लिया है, एक कसम खा लिया है कि आई एम डूइंग इट फॉर द पब्लिक सर्विस के लिए आ रहा हूँ मैं, तो वो वाला फुलफिल हो जाएगा बाय डूइंग दिस। इसके लिए आप रेडी है, कहाँ तक रेडी है, पर्सनली कुछ लॉस हो भी गया तब भी आप यू आर ओके विद दैट, पर्सनल इंटरेस्ट का कुछ लॉस हो भी गया दैट्स आल्सो फाइन। सो ये एक और चीज़ दिखाता है कि आपका स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब पब्लिक का भलाई, लोगों को भलाई करने में आपका पर्सनली कुछ नुकसान हो भी गया तब भी यू आर बेयरिंग इट, ठीक है, ये दिखाता है कि आपका स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है। सो दैट इज़ वन वे, कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एक्ट करना है, ऑलवेज गिव मोर प्रायोरिटी टू पब्लिक इंटरेस्ट रादर देन प्राइवेट, ठीक है। सेकेंड है जब आपका ये वाला डिस्कस किया था हमने, पब्लिक वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, और व्हेन एवर यू हैव अदर डायलेमास लाइक विथ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और रूल्स रेगुलेशंस और प्रोफेशनल एथिक्स, हमेशा क्या करोगे आप, एक कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन करना, कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन, इसका मतलब है अपने आप को अच्छे से सेल्फ असेस करना, सेल्फ असेस करके व्हाट आर द सिचुएशंस, कि क्या क्या रास्ते हैं, कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो किस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किस तरीके से जाएंगे तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकता हूँ, ये कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकता हूँ, वो यहाँ पर बाय डूइंग द कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। सो यहाँ पर जब भी एथिकल डायलेमा होता है हम कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन करेंगे, और इस एवैल्यूएशन का आउटकम ऐसे होना चाहिए, आपको इसके बाद एवैल्यूएशन के बाद जो एक्शन लेते हैं वो एक्शन ऐसे होना चाहिए जहाँ पर मैक्सिमम वेलफेयर टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ये वाला फुलफिल करना चाहिए। अगर आपका एक्शन जो है, इस एक्शन की वजह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर हो रहा है, So like the third and one professional ethics was the demand of superior. So we have also found same.
मैक्सिमम वेलफेयर। देखो अब वहाँ पर अगर डिमांड ऑफ द सुपीरियर मान लिया होता तो सिर्फ आपका वेलफेयर होता, आपको प्रमोशन मिलता या आपको कुछ बेनिफिट्स मिलता। वही आप उस क्रिमिनल को मतलब जेल में डालेंगे, बहुत सारे लोगों का भलाई होता है, उसने फ्यूचर में जो क्राइम्स करने वाला वो भी रोक सकते हो आप। सो वहाँ पर ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो रहा है तो यू विल गो विद दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्शन को ये गाइड करेगा, ठीक है। इवैल्यूएशन, कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर इस काम करते टाइम कुछ लोग को थोड़ा नुकसान पहुंच भी गया है, दैट्स फाइन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। ऐसे जा सकते हो, क्योंकि आइडियली तो नहीं बन सकता है डायलेमा का सिचुएशन में, तो वहाँ पर यू कैन गो विद दिस। देन थर्ड वे ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट इज बीइंग वैल्यू न्यूट्रल। वैल्यू न्यूट्रल मतलब यहाँ पर अपना पर्सनल बायसेस नहीं लेकर आना है। मतलब हम एक साइड लेते हैं ना, डोंट टेक एनी साइड्स, नॉट टेकिंग एनी साइड। मतलब कोई भी, मतलब अगर साइड ले लिया तो वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा, पर्सनल इंटरेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसको अवॉइड करके आप न्यूट्रल पर्सन होकर एनालाइज करो। बिकम न्यूट्रल, वैल्यू न्यूट्रल, एंड देन एक्ट एज ए थर्ड पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन दैट। वो पर्सन कैसे बिहेव करेगा, उस तरीके से बिहेव करेंगे तो मोस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स का टाइम पे हम अच्छा खासा डिसीजन, अच्छा खासा काम कर सकते हैं। दैट इज़ थर्ड। देन कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स आते हैं हमें, मतलब ये जब काम करते हैं तब कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करेंगे तो बेटर होगा। दैट इज़ ऑलवेज फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ वैल्यूज़ हैं, एस्पिरेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी, लिबर्टी, पब्लिक वेलफेयर, देन यू कैन से फ्रैटर्निटी, सेक्युलरिज्म, वेरी गुड। ये जो प्रिंसिपल्स है इनको हमेशा फॉलो करो, इनको अपहोल्ड करने के लिए काम करो। कभी भी अगर आपका पर्सनल रिलीजन है और दूसरा रिलीजन पर्सन्स का कुछ है और आपको वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सो यू बिकम सेक्युलर पर्सन, keep aside your religion is your personal affair. So in the public sphere you become a secular person. To you all the religions they have to be like neutral to you, ये वाला बन जाओ। तो then you start upholding the constitutional values. Then values of public services, such as integrity, impartiality, objectivity, ये सब हमने कहाँ पर देखा है? एक सेकेंड, हमने ये वाला ऑब्जेक्टिविटी ये सारी चीज़ें मैंने पहले वाला क्लास में पढ़ाया था। थर्ड चैप्टर आता है एथिक्स में, जहाँ पर एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज करके पढ़ा था, वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ाया है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ाया है, ठीक है। सो दैट हैज़ टू बी देयर, उनको अपहोल्ड करना है। सो अगर उनको अपलोड करेंगे तब भी क्या होगा, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट या डायलेमा बन रहा है उसको धीरे कम कर सकते हैं, अगर कंप्लीटली ख़त्म नहीं तो कम कर सकते हैं। देन फिफ्थ इज बीइंग रेस्पॉन्सिव टू सोसाइटी। मतलब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोसाइटी के लिए है, एंड यू आर वर्किंग फॉर aspire for greater public good, aspire for greater public good, ठीक है। अगर इस तरीके से आप डिसीजन लेंगे, इस तरीके से आप काम करेंगे, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो वाला सिचुएशन पे आप एथिकल डायलेमा जो भी आया है उसको कम कर सकते हैं।
So this is how one has to work. Clear? So this is how we can resolve the ethical dilemmas in public institutions. Similarly, जब आप प्राइवेट में काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट इन द पब्लिक सर्विसेज बट कोई और पर्सन पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी कुछ डायलेमास बन सकता है. ठीक है, वी विल लुक एट दोज प्राइवेट, क्योंकि आपका सिलेबस में दोनों का दिया हुआ है. पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या डायलेमास आ सकता है, उसको कैसे रिजॉल्व करना, प्राइवेट में क्या, दोनों में कुछ तो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ तो सेम रहेगा, कुछ थोड़ा अलग होगा. दैट वी विल लुक एट इट. ठीक है, तो नेक्स्ट सब हेडिंग लिख लीजिए. आपका सब हेडिंग गाइस क्या है? हाँ, वेरी गुड. एथिकल डायलेमास इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. सब हेडिंग लिख लीजिए, एथिकल डायलेमास इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. ठीक, इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. सो यहाँ पर भी नंबर 1 व्हाट आर द इश्यूज. एक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सेम जैसे पर्सनल इंटरेस्ट या इंस्टीट्यूशन का, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कुछ इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग फॉर ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उसका मेन मोटिव ये होगा कि अपना बिजनेस अच्छे से चलाए, प्रॉफिट अच्छे से कमाए. उस प्रॉफिट कमाने के चक्कर में एक दो लोगों को धोखा भी करे तब भी चलेगा इंस्टीट्यूशन के लिए. लेकिन बीइंग ए पर्सनल पर्सन, अब बीइंग यू आर हैविंग वैल्यूज़, यू डोंट वांट टू मतलब किसी को उल्लू बनाना या धोखा देना. अब ये वाला प्रोडक्ट है, कंपनी को लगता है कितना में 10 रुपये में बनाते हैं लेट्स से, लेकिन उनको प्रॉफिट चाहिए, उस वजह से क्या करेंगे, इसको 50 रुपये में बेच रहे हैं. तो वो क्या है, मेनली ऑर्गेनाइजेशन का वो मोटिव है, प्रॉफिट बनाना है और सप्लाई बढ़ाना है, डिमांड क्रिएट करना ये है. उसके लिए एक आधा चीज़ें झूठ भी बोलते हैं. कई बार आपने कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि कुछ ऐसे ही फेयर एंड हैंडसम हो सकता है, या लेट्स नॉट टेक द नेम्स, ब्रांडेड, उनको मतलब उनको ब्लैकैश नहीं करेंगे, बुरा ऐसे नेम्स नहीं लेंगे, बट यू कैन से सम कॉस्मेटिक्स है, वो कॉस्मेटिक्स लेते ही वो बोलेंगे कि गोरा हो गया. या कुछ ऐसे स्प्रेस वगैरह है, स्प्रे लगाते ही बोलेंगे कि 10-15 लड़कियां उनके पीछे भागा है. ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं. सो दिस आर लाइक, वो क्या है, एक पब्लिसिटी स्टंट है जो रियलिटी में नहीं होता है, राइट. तो ऐसे टाइम्स में why that is doing it in order to increase their revenue, in order to increase their like product sale. और बीइंग ए पर्सनल पर्सन, आपको पता है यार इससे इतना असर तो नहीं पड़ता है. अगर आपको पर्सनली बोलेंगे नहीं ये वाला पड़ता नहीं है, बट स्टिल यू हैव दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये यहाँ पर भी बन सकता है जहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट. प्लीज़ फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. देन सेकेंड, ओके, I'll also write ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी लिख पाए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सेकेंड देखो, नेपोटिज्म. नेपोटिज्म का मतलब क्या है, अपना भाई बंधु को प्रमोट करना, अपना भाई बंधु या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को अगर उनको सपोर्ट करना, फाइनेंशियली हो सकता है, या इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर कोई वैकेंसी है तो वहाँ पर अपना रिलेटिव्स को फिल करना. अगर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वहाँ पर, अगर आपका रिलेटिव उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई भी नहीं करता है, हाँ, फ्रॉम दैट एरिया, कंपटीशन में उस पर्सन को मतलब एक्स्ट्रा एड्स दे रहे हो. सपोज से 5 लोग आया है एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, और वहाँ पर आपका भी एक रिश्तेदार है, बाकी लोगों से कंपेयर करेंगे तो दैट पर्सन इज़ द लीस्ट क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब. फिर भी क्या करेंगे आप, बाकी लोगों को कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या कुछ और चीज़ें दिखा के उनमें कमियां दिखा दे के इनको रिक्रूट कर लेंगे. ठीक है, दैट इज़ नेपोटिज्म. ठीक है, इसमें लिख लीजिए. नेक्स्ट वाला है नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, मतलब बायसनेस, किसी को फेवरेटिज्म दिखाना. दिस इज़ अनदर पॉइंट. ठीक है. देन थर्ड है देखो, इवेजन,
मतलब ऑडिटिंग करते हैं हम, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो भी है उनका अकाउंट्स का ऑडिटिंग करते हैं, कितना कमाया है कितना आया है, ऑडिटिंग बेसिस पे हम उनको टैक्स लगाते हैं, लाइक कितना टर्नओवर आया, कितना प्रॉफिट्स आया। लेकिन यहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वाइल ऑडिटिंग दे शो दैट लाइक लेट मी राइट इट पूरा, लैक ऑफ इंटीग्रिटी और डायलेमा देख रहे हैं ना हम, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट्स राइट इट लाइक इंटीग्रिटी ऑफ ऑडिटिंग, इंटीग्रिटी ऑफ ऑडिटिंग प्रोसेस। ये फाइनेंशियल ऑडिटिंग ही नहीं है, इवन वर्किंग ऑडिटिंग एंड अदर थिंग्स का ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आप ऑडिटिंग पर्सन है हु इज़ वर्किंग इन ए ऑर्गेनाइजेशन, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि यार टैक्स का जो शेयर है वो कम दिखाओ, टैक्स कम जाना चाहिए, ऐसे दिखाओ कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कम है, यूज़ ऑल द लूप होल्स इन द लॉ टू रिड्यूस योर टैक्स। पर्टिकुलरली योर चार्टर्ड अकाउंट्स जो होते हैं, CAs चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो यही काम करते हैं। दे फाइंड ऑल द लूप होल्स, दे फाइंड ऑल द प्रोविजंस जहाँ यूज़ करके हम टैक्स का जो जाने वाला है उसको बचा सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं। तो अगर ये पर्सन CA है और ये ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि नहीं यार आप टैक्स जो जाता है ऑर्गेनाइजेशन से वो कम कराओ, ठीक है, प्रॉफिट्स वगैरह कम दिखा के कम कराओ, लेकिन एज ए इंडिविजुअल उस पर्सन का भी कुछ मानना होता है कि नहीं गवर्नमेंट को टैक्स अच्छे से पे करना है, टैक्स देंगे तभी गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सकता है, सोशल वेलफेयर तब भी होगा। तब देखो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि नहीं हो गया दोनों का व्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे ऑडिटिंग प्रोसेस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। देन फोर्थ है मोनोपोलाइजेशन। इसका मतलब होता है आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, यू कैन टॉक अबाउट लाइक ऑल द IPR रिलेटेड इश्यूज हियर। IPR में बहुत सारे एथिकल इश्यूज होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, जहाँ पर आपने कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ गया और उसके ऊपर आपका एक्सक्लूसिव राइट हो गया, तो वो प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकते हैं। तब क्या हो गया कि आप जितना पैसे रखेंगे उतना पैसे पे खरीदना ही पड़ेगा, वो एसेंशियल है तो और ज़्यादा इशू हो जाएगा, ठीक है, तो वो खरीदना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यू आर द ओनली पर्सन इन द मार्केट, मोनोपोली है आपका, हाँ आपका मोनोपोली है। तब क्या होगा, आप जितना बोलेंगे उतना पे खरीद के ले जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है जो आपको कम्पीट। फेमस कार, हाँ यू कैन से फेमस कार्स में फिर भी कंपटीशन है थोड़ा बहुत, ठीक है, यू कैन से फरारी, बुगाटी, देन लैम्बोर्गिनी, ऑल कंपटीशन तो है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर सिर्फ वो उनका ही रोल है और कोई नहीं है, ठीक है। टेस्ला का लेट्स टॉक अबाउट दैट, लाइक इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार, इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार, ठीक है, तो ठीक है कोई और बना भी सकता है, गूगल इज़ आल्सो ट्राइंग फॉर द सेम, ठीक है, ऑटो पायलट कार्स वगैरह ट्राई कर रहा है। बट कुछ ऐसे दवाई है, लेट्स से एक पर्टिकुलर दवाई है जो किसी और के पास नहीं है, तो तब क्या करना पड़ेगा, उन्हीं से लेना पड़ेगा सब लोग को। अभी तो चलो वैक्सीन, लेट्स टॉक अबाउट वैक्सीन। अब वैक्सीन तो इतने सारे लोग डेवलप कर लिए, अगर मान लो अगर कोई एक ही कंट्री डेवलप कर पाता तब बाकी लोग को क्या करना पड़ता है, उन्हीं से खरीदना पड़ता, ठीक है, तब इशू हो जाता है, राइट। तो ऐसे मोनोपोलाइजेशन इज आल्सो गोइंग टू लीड टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, दैट इज अगेन एथिकल इशू। देन अनदर थिंग इज मैनिपुलेशन एंड कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्रुप करना, ग्रुप बन जाना। इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग नेशंस, क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूस करते हैं ना, वो सारे नेशंस एक इकट्ठा बन के एक ग्रुप, OECD नेशंस करके एक ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। एंड वो ग्रुप बनने के बाद क्या करते हैं कि वो सब अपना पेट्रोलियम का प्रोडक्शन जो है उसको ऐसे मैनेज करते हैं जहाँ पर उनका डिमांड हमेशा रहे, हमेशा उनका प्राइस बढ़ते जाए, ठीक है। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा सब लोग मिला के, अब देखो 10 कंट्रीज़ है, 10 कंट्रीज़ अपना अपना डिमांड, अपना अपना प्रोडक्शन को कम कर दिया,
तब जो डिमांड तो ज़्यादा ही रहेगा, तब जिसका एनर्जी की नीड के हिसाब से डिमांड ज़्यादा करेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं अब तो एक बैरल जो है वो $10 पे, $50 पे, $100 पे बेचेंगे। तो आप दूसरा पास जाएंगे, वहाँ पर भी वो भी उतना ही बताएगा, कोई भी उतना ही बताएगा। तो मतलब एंटायर ग्रुप में अब ये है ना, आप जहाँ पर फ्रूट मार्केट्स वगैरह वेंडर्स होते हैं तो स्ट्रीट वेंडर्स, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, कोई एक दाम रखते हैं, जो प्राइस रखते हैं वही वाला सब लोग आपस में बात करके उतना ही प्राइस रखते हैं। हाँ वही, सो कार्टेलाइजेशन मतलब अपना ग्रुप बना के सब लोग एक इकट्ठा होकर प्राइस रखना। और इसी प्रोसेस में देखो मैनिपुलेट करते हैं प्राइसेस को। मतलब मान लो इसी एक आर्टिकल का है, इसका कॉस्ट पड़ता है आपको लेट्स से 10 रुपीज़ पड़ता है, तो 5 लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 को भी 10 रुपये ही बनता है, लेकिन 5 इकट्ठा हो गया, बोल दिया है कि चलो हम लोगों को 10 रुपये पड़ रहा है, लेकिन मार्केट में सब 5 लोग रिलीज़ करेंगे, लेकिन 5 लोगों का प्रोडक्ट ही 50 रखेंगे, 5 के 5 50 से आपस में बात करके। तो जो जिसको खरीदना है वो खरीद लेगा, आपका पेन खरीद लो, इसका पेन खरीद लो, इसका पेन, जो भी खरीदेगा आपको तो 50 रुपये प्रॉफिट तो मिल रहा है, समझ गए ना। ऐसे करके मैनिपुलेट करेंगे, प्राइसेस मैनिपुलेट करना ये भी एथिकली गलत है, एथिकल डायलेमा ही है। तो तब अगर आप वहाँ पर हो तो आपको ये दोनों चीज़ें पसंद नहीं है, कार्टेलाइजेशन भी नहीं करना, मैनिपुलेशन भी नहीं करना। प्रॉफिट्स यू कैन अर्न बट ऐसे ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करना है, ठीक है। होर्डिंग नहीं करना है, होर्डिंग इज़ आल्सो वन मोर थिंग, होर्डिंग इज़ अनदर इशू। मतलब होर्डिंग मतलब इकट्ठा करके रखना और अपॉर्चुनिटीज टाइम देखकर, जैसे पैज वगैरह, पैज का देखो कुछ लोग जब सस्ता विस्ता होता है तब खरीद लेते हैं, फिर मार्केट में स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं, जब स्कार्सिटी हो गया, महंगा बनने लग गया, तब अपना गोदाम से लेकर आके बेचते हैं ज़्यादा प्रेफर करने के लिए। तो ऐसे होर्डिंग वगैरह करना भी गलत वाला, ये सारे जगह पे आपका एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। और इसको रिजॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर भी वी कैन राइट इट, क्योंकि अपना कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा इंस्टीट्यूशन का, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, और पर्सनल वैल्यूज़ अलग होगा। जो पहले लिखा है ना वो भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये भी तो एक इंस्टीट्यूशन ही है। सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि वहाँ पर मेन मोटिव पब्लिक वेलफेयर होता है, यहाँ पर थोड़ा मेन मोटिव जो है दैट इज़ प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, बिजनेस करना, प्रॉफिट बनाना, ठीक है, ये वाला मेन होता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में है हम ये कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करने के लिए हम वी कैन टेक, जो पहले डिस्कस किया था ना कैसे कवर करना, वो वाला का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है और इस एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए। उस गाइडेंस कहाँ से मिलेगा आपको? यू कैन गेट दैट गाइडेंस फ्रॉम हियर, आपका सिलेबस में भी दिया है, लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, ठीक है। अब ये वाला देखेंगे, राइट। सो एनी डाउट सो फॉर ऑनलाइन? तो आपका डाउट है तो प्लीज़ राइट इट डाउन। ठीक है, लेट्स बिगिन। वो है आपका नेक्स्ट हेडिंग आएगा, राइट, प्लीज़ राइट, आपको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग इज लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉस, LAWS, लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। Laws, rules and regulations as a source of ethical guidance. ये है आपका हेडिंग, ठीक है। तो मतलब हम जब एथिकली डायलेमास फेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो डिसीशंस लेने के लिए हाउ लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस आर गोइंग टू हेल्प अस, वो देखेंगे हम। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर लॉस, व्हाट आर रूल्स, व्हाट आर रेगुलेशंस, ठीक है। देन वी विल सी हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प अस, ठीक है। सबसे फर्स्ट आप सब हेडिंग लिख लीजिए लॉस,
So what is a law? which is made by the government. Is it government or So it's their own as well as a government. गवर्नमेंट बनाता है? लॉ को कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है या लेजिस्लेचर बनाता है? So it's a part of government legislation. दैट इज़ ट्रू. देखो गवर्नमेंट का 3 आर्गन्स होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. अगर मेड बाय द गवर्नमेंट बोलेंगे तो तीनों आ जाएगा, इसलिए हम स्पेसिफिकली कहना होता है कुछ लॉस आर मेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बट स्पेसिफिकली लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसको हम टुगेदर वी कैन से लेजिस्लेचर. जो भी बिल पास होता है, बिल पास हो गया तो तब वो एक्ट बनेगा, तब वो लॉ बन जाएगा, तब तक वो लॉ नहीं है, ठीक है. सी प्लीज़ राइट, यहाँ पर आप भी लिख लीजिए, डिक्टेट कर रहा हूँ. लॉस आर डिक्रीज, DECREE, डिक्रीज मेड बाय the legislature, made by the legislature. कंटिन्यू कर लीजिए. they are usually based on an ethical framework and aim to bring social order. ठीक है, दैट इज ए लॉ. तो यहाँ पर वॉट एवर द डिक्री, वॉट एवर द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट or passed by the state legislative assembly or sometimes passed by the executive, they are called laws. एग्जीक्यूटिव का जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, लेजिस्लेशन प्रोसेस. सो वॉट एवर आउटकम दैट कम्स आउट ऑफ दिस लेजिस्लेशन इज कॉल्ड ए लॉ, ठीक है. नाउ यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आपको समझना होगा. एक तो पास्ड बाय द लॉ. कई बार अगर पार्लियामेंट या असेंबली हाउस में नहीं है, रेसेस में है, उस टाइम पे एदर प्रेसिडेंट और गवर्नर दे पासेस समथिंग कॉल्ड ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं. दे आल्सो कम अंडर द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है, ये सारी चीज़ें लॉस के अंदर ही आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट सबमिटिंग लिख लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस. अभी लॉ समझ लिया, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल्स एंड रेगुलेशंस, अब देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब होता है आपने कोई लॉ बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट तो करेंगे. लॉ बनाना जो है वो काम है लेजिस्लेचर का, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है. आपका गवर्नमेंट में जैसे हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट यू हैव लाइक 3 विंग्स. लेजिस्लेचर विंग जो लॉस बनाता है, और एग्जीक्यूटिव विंग जो लॉस को इम्प्लीमेंट करता है, एंड जुडिशरी विंग जो सारी चीज़ को रेगुलेट करके एक सोशल जस्टिस, जुडिशियल जस्टिस लेकर आता है, क्रिमिनल जस्टिस, राइट. ये तीनों विंग्स है गवर्नमेंट का, राइट. तो यहाँ पर लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, अब वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला है एग्जीक्यूटिव. उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक एलॉबरेटिव फ्रेमवर्क चाहिए, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स. वो फ्रेमवर्क जो है, एक पर्टिकुलर लॉ है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फ्रेमवर्क बनता है, दैट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट लॉ. मतलब हर एक लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क हम बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, ठीक है. इसमें लिख लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर elaborated
rules and regulations are elaborated framework that are usually framed with an aim to bring simplification and convenience in implementing laws. तो इन दिस सेंस अगर डिफरेंसेस की बात करना है, लॉस आर मेड बाय द लेजिस्लेचर, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द एग्जीक्यूटिव, लॉस आर फॉर इंडिविजुअल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर द सोसाइटी, एंटायर कम्युनिटी के लिए हैं। और लॉस का जो है दीज आर मोर और लेस फिक्स्ड, एक बार लॉ बना लिया है वो जब तक दूसरा अमेंडमेंट नहीं आता है, दिस इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट, जो चेंज करते हैं, जब तक अमेंडमेंट नहीं आता है वो लॉ का उसी रूप में रहेगा, उसमें कोई प्रोविजंस चेंज नहीं होगा। लेकिन रूल्स जो है वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी इम्प्लीमेंटेशन लेवल। ये सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या फ़र्क है, ठीक है। नाउ what we wanted to mainly focus is how these laws, rules and regulations are going to help us determine the ethical guidance कैसे बन सकता है, वो वाला सब हेडिंग लिख लीजिए। सब हेडिंग है laws, rules and regulations as a source of ethical guidance। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट या सब हेडिंग दैट इज, फर्स्ट पॉइंट की तरफ पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए, these regulate the discretionary power, regulate the discretionary power of authorities। अब देखो प्रॉब्लम्स आप नहीं आए थे तब तक, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। उसमें वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज हैविंग डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है कि हर एक पब्लिक सर्वेंट को अपना मर्जी से करने वाला कुछ पावर्स होता है। जैसे प्रेसिडेंट का भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स है, गवर्नर का भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स है। इसी तरीके से अगर वो डिस्क्रिशनरी पावर्स को अब्यूज़ करना या मिसयूज़ करना स्टार्ट करेगा तब एथिकल इश्यूज आ जाएगा, तब गवर्नेंस में प्रॉब्लम्स आ जाएगा। तो उस अब्यूज़ या मिसयूज़ को रेगुलेट करने के लिए हम क्या बनाया है, रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉस बनाया है, ठीक है। सो बाय रेगुलेटिंग दिस डिस्क्रिशनरी पावर्स वी आर स्टॉपिंग द अब्यूज़ एंड मिसयूज ऑफ दोज पावर्स, देयरबाय एथिकल स्टैंडर्ड्स आर अपहेल्ड, ठीक है। ये हाँ ठीक है, यहाँ पर काम आ रहा है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, these command as a positive and negative enabler, enabler, E-N-A-B-E, enabler, E-N-A-B-L-E-R, enabler मतलब जो enable करता है, ठीक है। enabler to encourage or prohibit an action।
कैसे, अब देखो ये कैसे, मतलब एक्शन और इनएक्शन को इनेबल करेगा। सी फॉर एग्जांपल इफ आई आर टू टॉक, करप्शन एक बिगेस्ट एलिमेंट है। तो करप्शन को कम करने के लिए हमने क्या किया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया है हमने, है ना, एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। अगर उस एक्ट के द्वारा अगर कोई भी पर्सन करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होता है उनको पनिशमेंट मिलता है, तो देयर बाय वी आर प्रोहिबिटिंग, हम स्टॉप कर रहे हैं वो करप्शन को, ठीक है, दैट इज डन बाय द लॉ। एक और चीज़ बात करते हैं, सी कुछ और चीज़ के लिए कई बार हम प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मनरेगा है, महात्मा गांधी रूरल जनरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, उसमें हमने एक चीज़ इंक्लूड कर लिया बाय रूल्स, बाय अमेंडिंग द रूल्स, दैट इज कॉल्ड सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मतलब होता है कि लोग जाकर खुद ऑडिटिंग कर सकते हैं कि कितने पैसे आया, कहाँ पर खर्च किया, किससे क्या क्या बनाया है, कोई भी उस लोकेलिटी का कोई भी पर्सन जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है, इससे भी करप्शन कम हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, सो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर गोइंग टू रिड्यूस दैट करप्शन एंड एथिकल इश्यूज, दे आर गोइंग टू गाइड अस। देन थर्ड वाला लिख लीजिए, रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज provide for social justice, by protecting fundamental rights such as equality, liberty, फ्रैटर्निटी एट्सेट्रा। इक्वालिटी, लिबर्टी एट्सेट्रा लिख लीजिए, फ्रैटर्निटी फंडामेंटल राइट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये भी करता है, ठीक है। हम इफ़ यू सी इट, वी हैव सो मेनी लॉज विच आर देयर फॉर टू ब्रिंग इक्वालिटी। नेट न्यूट्रलिटी हो सकता है, रिलीजन से लेकर कुछ सेकुलर नेचर बेसिस पे कुछ लॉस बनाते हैं, ठीक है, एंड इक्वल वेजेस लॉ बनाया है, इक्वल वेजेस एक्ट बनाया है, रेम्यूनरेशन एक्ट बनाई, ये सारी चीज़ें क्या है, इक्वालिटी लेकर आने के लिए किया है। सो देयर इज़ ऑल्सो लाइक बाई दिस ऑल्सो इट इज़ गाइडिंग यू एथिकली, कि कभी भी आपको कुछ डायलेमा में पड़ जाता है, यू गो बैक टू दिस लॉ, ये लॉ कहता है कि आपका इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी लेकर आना है, सो यूजिंग दैट यू कैन टेक दी एक्ट। देन एक और नेक्स्ट देख लीजिए, दे प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड environment, protect human rights and environment। यहाँ पर देखो, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, सिविल ह्यूमन राइट्स एक्ट। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज़ देयर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज़ देयर, ये सब चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एक्ट है। तब कभी भी कुछ एथिकली एक्ट कर रहे हो उस टाइम पीरियड पे, इफ़ यू आर गेटिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, तब क्या कर सकते हो आप, यू कैन गो बैक टू दिस लॉज एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, एथिकली गाइडेंस मिलेगा। देन एक और पॉइंट लिख लीजिए, दे provide enforcement for public servants while combating corruption, unethical behavior, etc.
ठीक है। फिर एक और लिख लीजिए, दे हेल्प इन फाइटिंग social evils and cultural evils. कैसे? एग्जाम्पल देखो, सोशल ईविल का मतलब है सती या अनटचेबिलिटी। इन सब चीज़ को फाइट करने के लिए आपका लॉस में कुछ प्रोविजंस है। सिमिलरली कल्चरल ईविल्स, कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस होता है, उनको भी इधर प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रोहिबिट करने के लिए। अच्छा है तो प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव लॉस, ठीक है। अगर बुरा है तो उनको हम प्रोहिबिट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकना चाहते हैं, इसलिए प्रोहिबिटिंग दैट, ठीक है। वेर एज गुड कल्चरल प्रैक्टिस एक है, उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब कुंभ मेला है या कामाख्या मेला है, कामाख्या फेस्टिवल है, ये गुड प्रैक्टिसेस है तो उनको प्रमोट करते हैं, उनके लिए सारे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। सो दोनों वे में आपको लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। सो एट द सेम टाइम लाइक दीज लॉस सिंस दे आर अडेप्टिव इन नेचर, तो हमेशा क्या होता है कि उसमें जो भी लूप होल्स वगैरह जो है उसको हम पता कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन ए लॉ इज़ ब्रोकन, ठीक है, व्हेन ए लॉ इज़ बीन मिसयूज्ड, वो बाहर आएगा तब आपको पता चलेगा कि किस लूप होल को यूज़ करके ये वाला लॉ को मिसयूज़ किया है। तो द इमीडिएटली यू कैन टेक द अमेंडमेंट प्रोसेस एंड यू कैन चेंज दैट, यू कैन फिक्स दैट लूप होल, वो बग फिक्स कर सकते हैं हम, ठीक है। देयर बाई it is adaptive in the nature which is going to change itself according to the needs of the society, ठीक है। So this manner the laws, rules and regulations are going to help you or guide you in dealing with the ethics and behaving in ethical manner, ठीक है। So that is the